Good morning students. Today we are going to solve the numerical on temperature stresses. This is the first and very simple numerical. First of all we are going to read this numerical. A rod is 2 meter long and at 10 degrees centimeter. Means length is given and is equal to how much? 2 meter long at 10 degrees centigrade. 10 degrees centigrade means initial temperature is given, that is 10 degree centigrade. Find the expansion of rod when the temperature is raised up to 80 degrees centigrade. Okay, so T2 is given how much? T2 is 80 degree centigrade. Find the expansion if the expansion is prevented. Question क्या पूछा है? Find the expansion of rod. Find the expansion of rod when the temperature is raised up to 80 degree centigrade. मतलब to find भी हम लिख लेंगे simultaneously. Find the expansion of rod when temperature is raised up to 80 degree centigrade. Expansion of rod that is delta L you have to determine. कि पूरा अगर expand होने अगर हो गया तो कितना होने वाला है? टोटल फ्रीली अगर expand होने दिया तो कितना होने वाला है? That delta L we have to determine. Then if the expansion is prevented, what are the expansion is created? If that expansion is prevented, then find the stress in the material. Then find the stress in the material. तो सेकंड केस में आपको सिग्मा भी फाइंड आउट करना है. और सिग्मा किसके लिए फाइंड आउट करना है? When complete expansion is prevented. Find if the expansion is prevented. ठीक है, ये बात ध्यान रखना. If the expansion is prevented. अगर expansion completely prevent किया है, then you have to determine the value of sigma. Okay. Capital E is given to you. That is 1 into 10 raised to power 5 MPa, and alpha is given to you, that is 0.000012 per degree centigrade. So E and alpha is given to you. Now you have to solve this number. Solution for number 1, change in length. Case 1 क्या है? What is case 1? Find the expansion of rod where temperature is raised up to 80 degree centigrade. Means expansion of rod you have to determine. Expansion of rod you have to determine. ठीक है? Expansion of rod निकालना है. तो expansion of rod किससे डिनोट कर दे? Delta L. Okay. So we can determine the value of delta L. तो delta L कैसे निकालोगे? What is the formula for delta L? Previous lecture में हमने देखा था. क्या formula है delta L के लिए? Delta L is equal to alpha into T into L. Is it clear? Alpha into T into L. यहाँ पे T क्या होगा? T is the change in temperature. T is the change in temperature. So T is equal to what? T2 minus T1. T is equal to T2 minus T1. तो T2 कितना है? 80. T1 कितना है? 10. तो यहाँ पे कितना आएगा? 70. So T is equal to 70 degree centigrade. T is equal to 70 degree centigrade. After that we can find the value of delta L. So delta L is equal to how much? Delta L क्या होगा? Alpha. Alpha कितना है? Alpha is 0.000012 multiplied by alpha into T. T is temperature that is 70. टेम्परेचर आपको 70 डिग्री सेंटीग्रेड में लेना है, उसे रेडियन में कन्वर्ट नहीं करना है. जो दिया है वैसे ही लेना है 70 डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाइड बाय अल्फा इनटू टी इनटू एल. एल का कितना है? लेंथ कितना है? लेंथ इज 2 मीटर. तो 2 मीटर मतलब कितना आ जाएगा? 2000 एमएम में कन्वर्ट कर देंगे उसे. ठीक है, 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2000 एमएम. सो डेल्टा एल इज इक्वल इट कम्स टू बी delta L it comes to be 1.68 mm. 1.68 mm. So this is the value of delta L. After that we are going to determine the value of sigma. We are going to determine the value of sigma. So sigma क्या है? Find the stress in the material. If expansion of rod is prevented, means full expansion of rod is prevented. Is it clear? ये देखिए मटेरियल में स्ट्रेस कब डेवलप होगा? जब उसे प्रिवेंट करने से रोकेंगे. ठीक है, एक समझो रॉड है और वैसे धूप में रखा है और फिर वो थोड़ा सा एक्सटेंड होता है. अगर उसे फिक्स कर दिया, ठीक है, उसे एक्सपांड नहीं होने दिया तो उसमें स्ट्रेसेस डेवलप होने वाले हैं. इज इट क्लियर? तो आप पूरा एक्सपेंशन प्रिवेंट करने वाले हो.
ठीक है, उसके लिए आपको स्ट्रेस निकालना है। तो जो फॉर्मूला हमने देखा था वो पूरा अगर एक्सपांड अगर नहीं होने दिया, मतलब इतना सा भी एक्सपांड नहीं होने दिया, दैट इन दैट कंडीशन ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो क्या है फॉर्मूला? व्हेन फुल एक्सपांशन is prevented, when full expansion is prevented, sigma is equal to what? Alpha into t into e, alpha into t into e। ये फॉर्मूला हमें कब यूज करना है? जब हम पूरा का पूरा एक्सपांशन प्रिवेंट कर रहे हैं, तो ही टाइप का स्ट्रेस होगा ना। अगर डेल्टा या पूरा एक्सपांड होने देते थे 1.68, तो उसमें कोई स्ट्रेस रहता था? नहीं रहता था। क्यों? क्योंकि उसे एक्सपांड होने दिया हमने, ठीक है। अगर उसे एक्सपांड नहीं होने देते तो उसमें स्ट्रेस डेवलप होता है ना किसी भी चीज में। इज इट क्लियर? अगर हम इसे एक्सपांड नहीं होने देते तो ही उसमें स्ट्रेस डेवलप होता है। एक्सपांड अगर होने दिया तो स्ट्रेस डेवलप होगा नहीं। जैसे अगर एक्सपांड होने दिया तो 1.68 mm एक्सपांड हुआ, एट दैट टाइम स्ट्रेस कितना रहेगा? 0। पर ये 1.68 mm जो लेंथ बढ़ने वाली थी ना, इज इट क्लियर? हाँ, वो बढ़ने ही नहीं हमने, मतलब समझ में आ रही नहीं आ रही? जैसे ये 2 मीटर का रॉड है, दिस इज 2 मीटर रॉड एंड यू हिट अप दैट रॉड, तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी? 1.68 mm। इज इट क्लियर? लेंथ कितनी बढ़ेगी? 1.68 mm। बट हमने उसे अगर बढ़ने नहीं दिया, ठीक है, हमने क्या किया? यहां पे फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड किया, फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड किया। अगर और फिर उसके बाद मैंने 80 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब चेंज इन टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड किया, तो क्या होने वाला है? 1.68 mm डिफ्लेक्ट होने वाला था पर नहीं हुआ, और उसके कारण जो स्ट्रेस हुआ, दैट स्ट्रेस इज सिग्मा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रेस मतलब क्या है, ये क्या है, ठीक है। दिस स्ट्रेस इज डेवलप बिकॉज वट एवर द एक्सपेंशन इज गोइंग टू क्रिएटेड, वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ दैट एक्सपेंशन, बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस इज डेवलप, बिकॉज ऑफ दिस द स्ट्रेस इज डेवलप। ओके, सो अल्फा इज हाउ मच? अल्फा इज यस 0.000012 multiplied by T, temperature is 70, T is what? Change in temperature, that is 70, and E is how much? 1 into 10 to the power 5, okay, 1 into 10 to the power 5। एम्पीयर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, न्यूटन पर एम्स तो वही देना है। तो सिग्मा कितना आएगा? सिग्मा विल कम्स टू बी 84 न्यूटन पर एम, 84 न्यूटन पर mm स्क्वायर। I hope you understand this one. Thank you. This is the next problem. A 600 mm vertical copper rod is placed in a position as shown in figure. This is the copper rod of 600 mm which is placed in a figure as shown in figure. ये diagram दी है। Between two rigid horizontal supports are there. These are the red color में जो शो किया है, these are the rigid horizontal support, मतलब वहाँ पे उसे फिक्स किया है, ठीक है। तो अगर उसे हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी लेंथ चेंज होगी, तो चेंज हुई तो इसके बाहर जा सकते हैं क्या वो? इसके बाहर जा सकते हैं? नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, ठीक है। फिक्स सपोर्ट के कारण उसके बाहर वो जा नहीं सकता। तो उसमें जो है इसमें 0.2 mm की गैप दिखेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसमें 0.2 mm की गैप दिख रही है, ठीक है। फाइंड द कंप्रेसिव स्ट्रेस इन अ बार व्हेन टेंपरेचर इज रेज्ड अप टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा अगर समझो ये एक्सपांड होगा, ठीक है। तो एक्सपांड 0.2 में होने वाला है क्या? नहीं, ज्यादा होगा या कम भी हो सकता है। अगर कम हुआ तो उसमें कोई स्ट्रेस डेवलप ही नहीं होगा, पर अगर वो ज्यादा एक्सपांड हुआ तो उसमें स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है। तो जो स्ट्रेस उसमें डेवलप होने वाला है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी है, कुछ भी नहीं है, पर सिंपल है, ठीक है। तो उसमें ये हमको स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। टेक अल्फा सी और ई की वैल्यू आपको दी है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। क्या क्या दिया है? लेंथ ऑफ द रॉड दैट इज 600 mm, देन चेंज इन टेम्परेचर दैट इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्फा सी दिया है 1.6 into 10 to the power -5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। एक मिनट, -5 माइनस थोड़ा चेक कर लेता हूँ। यस -5 ही है, ओके। सो 1.6 into 10 to the power -5
और E जो है वो कितना है 1.05 into 10⁵ न्यूटन पर mm square. So these are the given data. Okay, and you have to determine what? Find the compressed stress in the bar. You have to determine the value of stress. You have to determine the value of stress. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे अगर ये ऊपर का सपोर्ट नहीं रहता और इसने अगर टेम्परेचर बढ़ाया 40 डिग्री से अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो ये कितना एक्सपांड हो सकता था? ठीक है, सबसे पहले तो हम वो निकालेंगे कि ये कितना एक्सपांड हो सकता है एक्चुअल में। अगर ये सपोर्ट नहीं लगाया कि ऊपर का तो ये कितना एक्सपांड हो सकता है। ठीक है, देखिए डेल्टा है। अब डेल्टा मतलब क्या हो रहा है? PL अपॉन E होगा क्या? नहीं, PL अपॉन E कब होता है? जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट होते हैं। ठीक है, इस रॉड के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हुआ है क्या? नहीं, इस रॉड के ऊपर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसके कारण उसका लेंथ चेंज होने वाली है। ठीक है, सो डेल्टा L इज बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो क्या है फॉर्मूला? अल्फा इनटू T इनटू L, अल्फा इनटू T इनटू L। सो अल्फा कितना है? अल्फा इज 1.6 इनटू 10⁻⁵। T कितना है? T इज चेंज इन टेम्परेचर दैट इज 40। L कितना है? L इज 600। So if you solve this, you will get the value of delta L is equal to 0.384. So delta L equal to how much? 0.384 mm. तो अगर समझो इसके ऊपर अगर सपोर्ट नहीं रहा तो ये 0.384 तक बढ़ सकता है, इसके लिए 0.384 तक बढ़ सकती है। पर ऐसा है क्या? नहीं। क्या है? यहाँ पे सपोर्ट दिया है और यहाँ पे उसमें डिफरेंस कितना है? 0.2 mm का। मतलब 0.2 mm तक ये एक्सपांड हो सकता है, उसके बाद ये एक्सपांड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? 0.2 mm तक ये एक्सपांड हो सकता है, पर कितना नहीं एक्सपांड हो सकता? उसके बाद नहीं एक्सपांड हो सकता। ठीक है, सो टोटल एक्सपांशन प्रिवेंटेड अगर हम निकालेंगे, टोटल expansion prevented, if I want to calculate total expansion prevented is equal to क्या हो जाएगा? total expansion prevented is equal to total expansion that is 0.384 minus allowable expansion। allowable कितना है? 0.2 तक बढ़ सकता है, 0.2 के ऊपर नहीं बढ़ सकता क्योंकि यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है। ठीक है, सो माइनस 0.2, तो ये कितना बचा? 0.184। सो डेल्टा L कितना हो गया अभी? एक्चुअल डेल्टा L अब तक कितना हो गया? ठीक है, एक्चुअल डेल्टा L जो है, एक्चुअल डेल्टा मतलब डेल्टा L प्रिवेंटेड ये बराबर है टोटल एक्सपांशन प्रिवेंटेड इज इक्वल टू हाउ मच? 0.184 mm। तो इतना एक्सपांशन प्रिवेंट हुआ। अब जब एक्सपांशन प्रिवेंट होता है तभी बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होते हैं और स्ट्रेन भी डेवलप होता है। ठीक है, अब इसके कारण स्ट्रेन कितना डेवलप हुआ? ये जो एक्सपांशन हमने प्रिवेंट किया वो 0.184 mm बढ़ने वाला था, पर हमने उसे रोक के रखा, तो उसके कारण स्ट्रेन डेवलप हुआ स्ट्रक्चर में। ठीक है, वो रॉड में स्ट्रेन डेवलप हुआ। वो स्ट्रेन कितना रहेगा? वो स्ट्रेन का रहेगा, स्ट्रेन की वैल्यू क्या रहेंगी? वो स्ट्रेन की वैल्यू करेंगे स्मॉल e इज इक्वल टू डेल्टा L बाय L। ये प्रिवेंटेड है, स्मॉल e इज इक्वल टू डेल्टा L बाय L। सो डेल्टा L कितना है? 0.184 और लेंथ कितनी है? लेंथ है 600। ठीक है, अगर ये कैलकुलेट करोगे तो आपको E का ऐसे मिलेगा। ठीक है, और E कितना निकला? 3.067 into 10⁻⁴। 3.067 into 10⁻⁴। Okay, so this is the value of E. This is the value of E. E is what? Strength. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टोटल एक्सपांशन प्रिवेंटेड 0.184, ये समझ में आया ना? ये 0.184 क्या है? ये एक्सपांशन जो हमने प्रिवेंट किया। अगर समझो आप समझ लो कि ये हम प्रोवाइड नहीं करते थे तो वो एक्सपांड हो जाता था, तो उसमें कोई स्ट्रेन डेवलप होता था? नहीं। स्ट्रेन कब डेवलप होता है? जब हम उसे एक्सपांड होने से रोकते हैं तब डेवलप होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ 0.184 के लिए स्ट्रेन डेवलप हुआ, तो स्ट्रेन कितना डेवलप हुआ? E इक्वल टू 0.367 into 10⁻⁴। अब E निकल गया, अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है? अभी आपको फाइंड आउट करना है सिग्मा। तो सिग्मा
जैसे कैपिटल ई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल ई इनटू स्मॉल ई। सो कैपिटल ई कितना है, कैपिटल ई 1.05 into 10 raised to power 5 multiplied by कितना 3.067 into 10 raised to power -4. If you calculate it, then you will get the answer as 32.2 Newton per mm square. अगर हम कंप्लीटली एक्सपांड होने देते थे तो सिग्मा की वैल्यू क्या रहती थी, 0। अगर हम थोड़ा सा भी एक्सपांड नहीं होने देते थे, ठीक है, मतलब 600 मतलब 600, ये फिक्स सपोर्ट हम यहाँ पे देते थे, तो फिर आपकी वैल्यू क्या रहती थी, हाँ आपकी वैल्यू क्या रहती थी, सिग्मा कैसे निकालते थे आप, सिग्मा इक्वल टू अल्फा इंटू टी इंटू ई, ओके, सिग्मा इक्वल टू अल्फा इंटू टी इंटू ई, या आप इसमें से भी निकाल सकते थे, इसमें से भी अगर आपने निकाला तो आपको वही आंसर आने वाला है, ई इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा कितना रहेगा 0.384, इतना सब एक्सपेंड नहीं होने दिया ना आपने, कुछ भी एक्सपेंड होने दिया यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.384, तो ये ई की वैल्यू आएगी, और ई की वैल्यू इसमें अगर पुट करोगे, कैपिटल तो पता है, स्मॉल ई की वैल्यू उससे पुट करोगे तो स्ट्रेस निकल आएगा, और ये जो स्ट्रेस निकलेगा ना, और इससे जो स्ट्रेस निकलेगा वो सेम रहेगा, इज इट क्लियर, वो सेम रहेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू थिंग्स, ठीक है। सो ये नंबर हुआ, अभी देखते हैं थर्ड नंबर। This third number is a 15 mm diameter steel rod passes centrally through a copper tube of 50 mm external diameter and 40 mm internal diameter, ठीक है, मतलब हम सबसे पहले डायग्राम निकालेंगे, एक कॉपर रॉड की ट्यूब है बोलते, मैं प्लान ड्रॉ करूंगा सबसे पहले, एक कॉपर रॉड ट्यूब, ठीक है, ये ट्यूब किसकी है होगी अभी, ये है कॉपर रॉड, दिस इज अ कॉपर रॉड ट्यूब, दिस इज अ कॉपर रॉड ट्यूब एंड अ स्टील रॉड ऑफ 15 mm diameter passes centrally, okay, this is your plant, ये क्या है, this is your steel rod, this is your steel rod having diameter 15 mm, okay, ये क्या है, this is what, this is your copper rod, कॉपर रॉड के डायमेंशन क्या है, कैपिटल डी कितना है, एक्सटर्नल डायमीटर इज 50 mm एंड इंटरनल डायमीटर इसमें डी एज बोल चुका हूं, ये डीसी 40 mm, ओके। The tube is closed at each end by rigid plates of negligible thickness, ठीक है, मतलब ये ट्यूब है, ये रॉड है, ठीक है। अब इसका मैं एलिवेशन ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं इसका एलिवेशन ड्रॉ करूंगा, नेग्लिजिबल थिकनेस की कुछ प्लेट्स दिखाई है, तो मैं प्लेट्स ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ये प्लेट्स है उसके ऊपर रखी हुई, इसके ऊपर स्टील रॉड और ट्यूब के ऊपर, अब ये जैसे रखा हुआ है तो इसका प्रोजेक्शन आ जाएगा यहाँ पे, अगर ये रेड पेज है तो मैं ये रेड पेज भी ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये क्या है, दिस इज योर स्टील रॉड, अब इसके प्रोजेक्शन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, दिस इज योर कॉपर रॉड, ओके, हैविंग लेंथ L, लेंथ दिया है, मेंशन किया क्या न्यूमेरिकल में, लेंथ मेंशन नहीं किया, ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं, क्या होता है, ठीक है, समझ में आया। ये क्या है, दिस व्हाट, दिस इज कॉपर
एक्चुअली रॉड नहीं है, कॉपर ट्यूब. दिस इज योर कॉपर ट्यूब एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर स्टील रॉड. दिस इज योर स्टील रॉड. ओके, आपको न्यूमेरिकल समझ में आया, डायग्राम की असेंबली समझ में आई. अभी करते हैं हम न्यूमेरिकल सॉल्व. negligible thickness. The nuts are tightened on the projecting part of the rod. If the temperature of assembly is raised to 60 degree centigrade, temperature of assembly raised कितना दिया, मतलब T कितना दिया है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड. Calculate the stress developing copper and steel rod. Calculate the stress developing copper and steel rod. अच्छा, ये फिक्स है क्या? ये जो प्लेस है ये फिक्स है क्या? नहीं, ये फिक्स नहीं है. ये फिक्स किसको की गई है? कॉपर रॉड पर स्टील रॉड को. तो ऊपर से फिक्स है कि ये फिक्स सपोर्ट है क्या? नहीं, दीज आर नॉट द फिक्स सपोर्ट्स. अगर फिक्स सपोर्ट नहीं है मतलब ये एक्सपांड होने वाला है. ठीक है, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? कैलकुलेट द स्ट्रेस डेवलपिंग कॉपर एंड स्टील रॉड. तो कॉपर रॉड में कितना स्ट्रेस डेवलप होगा और स्टील रॉड में कितना स्ट्रेस डेवलप होगा? आप मुझे बताओ, अगर ये दो कॉपर और स्टील रॉड अलग अलग रहते और उसे एक्सपांड होने देते तो उसमें कोई स्ट्रेस डेवलप होता? नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि वो इंडिविजुअल एक्सपांड हो रहे हैं. पर समझो फॉर एग्जांपल वो अभी ये कंडीशन में अगर वो साथ में एक्सपांड हो रहे हैं तो उसमें स्ट्रेस डेवलप होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि जब साथ में एक्सपांड होता है तो जो मटेरियल की कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा होता है वो ज्यादा एक्सपांड करेगा. जिसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कम होता है वो कम एक्सपांड करेगा. पर साथ में होने के कारण उनको साथ में एक्सपांड होना है. तो जो कम एक्सपांड होने वाला है उसके ऊपर टेंशन फोर्स डेवलप होने वाला है और जो ज्यादा एक्सपांड होने वाला है उसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होने वाला है. इज इट क्लियर? अभी देखो, कैलकुलेट द स्ट्रेस डेवलपिंग कॉपर रॉड एंड स्टील रॉड. मतलब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या फाइंड आउट करना है आपको? सिग्मा एस फाइंड आउट करना है और सिग्मा सी फाइंड आउट करना है. सिग्मा एस एंड सिग्मा सी वी हैव टू डिटरमाइन. टेक ES एंड EC. अब ये वैल्यू मैं फिर से लिखता नहीं हूँ. ES इक्वल टू दिया है, EC इक्वल टू दिया है, अल्फा एस भी दिया है और अल्फा सी भी दिया है. अब अल्फा एस और अल्फा सी से हमें क्या समझ में आता है? इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा सी इज मोर एंड अल्फा सी इज ग्रेटर देन, बड़ा है नहीं, अल्फा सी इज ग्रेटर देन अल्फा एस. अल्फा सी इज ग्रेटर देन अल्फा एस. ठीक है, तो अल्फा सी जो है जो ग्रेटर है तो ये ज्यादा एक्सपांड होने वाला है और ये कम एक्सपांड होने वाला है. पर एक्चुअल में दोनों सही एक्सपांड होने वाले हैं. तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स डेवलप होने वाला है? जो ज्यादा एक्सपांड होने वाला था पर हो नहीं पा रहा है किसके कारण? स्टील के कारण. तो उसके ऊपर ऑफ कोर्स कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा. इज इट क्लियर? कंप्रेसिव फोर्स इन कॉपर, कंप्रेसिव फोर्स डेवलप हो गया. अब स्टील के बारे में क्या होने वाला है? स्टील के बारे में क्या होने वाला है? स्टील जो एक्सपांड होने वाला था उससे ज्यादा एक्सपांड हो रहा है. क्यों? क्योंकि कॉपर उसे खींच रहा है ऊपर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या डेवलप होने वाला है? स्टील के ऊपर टेंसाइल फोर्स. स्टील के ऊपर क्या डेवलप होने वाला है? टेंसाइल फोर्स. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. कैलकुलेट द स्ट्रेस डेवलपिंग कॉपर एंड स्टील रॉड. तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्री एक्सपेंशन ऑफ स्टील रॉड एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ कॉपर रॉड. मतलब फ्री एक्सपेंशन ऑफ स्टील रॉड क्या होने वाला है? फ्री एक्सपेंशन ऑफ स्टील रॉड सिंपल है, अल्फा एस अल्फा इंटू टी इंटू एक्सपांड करेंगे एल, अल्फा इंटू टी इंटू एल, अल्फा एस टी इंटू एल. ठीक है, और फ्री एक्सपेंशन ऑफ कॉपर ट्यूब क्या होगा? अल्फा सी इंटू टी इंटू एल सी, अल्फा सी इंटू टी इंटू एल सी. ये होगा आपका फ्री एक्सपेंशन. अभी आप मुझे बताओ, टेंसाइल फोर्स इन स्टील इज इक्वल टू क्या रहने वाला है? कंप्रेसिव फोर्स
इन कॉपर। टेंसाइल फोर्स स्टील इज इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स इन कॉपर। ये कैसे आया? ये देखो, अगर कॉपर स्टील को खींच रहा है और स्टील कॉपर को रिड्यूस कर रहा है, मतलब ये ऊपर खींच रहा है या नीचे खींच रहा है, तो वो जो दो फोर्स है वो दो फोर्स तो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। if the body is equilibrium condition, what is the force applied of compressive because of copper is equal to the force applied because of tensile force. So force मतलब क्या हो जाएगा? PS is equal to PC. ओके, PS is equal to PC. ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, PS is equal to PC. तो PS मतलब क्या होता है? सिग्मा S into S, because sigma is equal to force upon area. Therefore force is equal to sigma into A is equal to sigma C into AC. So from that, sigma S is equal to क्या हो जाएगा? AC upon AS into sigma C. ओके, सो AC कितना है? I/4 into कॉपर है ना, 50 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। कॉपर का ट्यूब है ना और हॉलो ट्यूब है, उसका एरिया क्या रहता है? π/4 कैपिटल टी स्क्वायर माइनस स्मॉल टी स्क्वायर। और स्टील 15 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा सी। इफ यू सॉल्व दिस, then you will get area of steel just a minute। यहाँ पे हमने एस लिख दिया, यहाँ पे सिग्मा एस, तो सिग्मा एस, तो सिग्मा एस स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू, इफ यू सॉल्व दिस then you will get 4। so sigma s stress in steel is equal to 4 times stress in copper। is it clear? stress in steel is equal to 4 times stress in copper। ये हमें रिलेशन मिल गया, किसमें का रिलेशन? स्टील और कॉपर में का रिलेशन। अभी हम निकालेंगे एक्चुअल एक्सपेंशन, ठीक है? अब आप मुझे बताओ एक्चुअल, एक मिनट, एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ स्टील, एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ स्टील ये कितना रहेगा? एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ कंप्रेशन, क्योंकि दोनों भी अटैच है, ठीक है, दोनों भी एक साथ बढ़ने वाले हैं, तो दोनों का जो एक्सपेंशन है वो सेम रहने वाला है। सो एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ स्टील इज इक्वल टू एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ कॉपर। एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ स्टील इज इक्वल टू एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ कॉपर। अब एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ स्टील ये क्या है? इसका क्या है? ये क्या रहने वाला है? फ्री एक्सपेंशन ऑफ स्टील। तो फ्री एक्सपेंशन ऑफ स्टील क्या है? सिग्मा एस टी इंटू एल एस, ठीक है, सिग्मा एस टी इंटू एल एस प्लस बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, तो फोर्स के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो क्या होगा? फोर्स के कारण जो एक्सपेंशन डेवलप होने वाला है, एक्सपेंशन मतलब चेंज इन लेंथ। फोर्स के कारण चेंज इन लेंथ कैसे रहती है? डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ई। इज इट क्लियर? डेल्टा इज इक्वल टू पी एल अपॉन ई। सो पी अपॉन ए इज नथिंग बट व्हाट? स्ट्रेस। सो सिग्मा एस पी एल अपॉन ए ई। एक मिनट, सिंपल है ना, क्या है? डेल्टा इज इक्वल टू क्या है? पी एल अपॉन ए ई, ठीक है, हम कन्वर्ट कर लेते हैं। पी अपॉन ए क्या हो गया? सिग्मा, सिग्मा इंटू एल, और बचा क्या? ई। वैसे ये इक्वेशन मैंने आपको लिख ही दिया है, ठीक है, सिग्मा एल अपॉन ई एस इज इक्वल टू, अब क्या इधर का इक्वेशन बनेगा? एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ कॉपर, फ्री एक्सपेंशन ऑफ कॉपर, फ्री एक्सपेंशन ऑफ कॉपर क्या रहेगा? अल्फा सी इंटू टी इंटू एल सी माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि कॉपर को दबा रहा है, एक्चुअली वो ज्यादा बढ़ने वाला था, पर स्टील के कारण वो कम बढ़ रहा है, वो स्टील के कारण वो कंप्रेसिव फोर्स के ऊपर डेवलप हुआ, तो वो कितना रहेगा? कितना रहेगा?
सिग्मा सी एल अपॉन पीसी। ये समझ में आया ना क्यों आया था? ये फोर्स के कारण चेंज इन लेंथ हुआ, फोर्स के कारण, और वो कंप्रेसिव है तो ये माइनस होगा, ये टेंसाइल है तो प्लस होगा। ये देखो टेंसाइल फोर्स है, टेंसाइल फोर्स इसलिए प्लस, ये कंप्रेसिव फोर्स है इसलिए हमने क्या लिया माइनस लिया। एंड इफ यू सॉल्व दिस, यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, अल्फा एस की सारी वैल्यू दी है, अल्फा एस की वैल्यू दी है, टी की वैल्यू दी है, हाँ इसमें एल नहीं दिया है तो इसका एल आप कैंसिल, ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। कैसे देखो, सबकी लेंथ सेम है, लेंथ सबकी सेम है तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो बचेंगे फिर क्या बचा, अल्फा एस इंटू टी। अल्फा एस कितना है तो लिख लेते हैं 12 इंटू 10 पावर -6। चेंज इन टेम्परेचर कितना है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। सिग्मा एस क्या है 4 टाइम्स सिग्मा सी अपॉन ई एस कितना है 2.1 इंटू 10 पावर 5 इज इक्वल टू अल्फा सी 17 इंटू 10 पावर -6, यह है 60 प्लस माइनस सिग्मा सी अपॉन 1.05 इंटू 10 पावर 5। अगर इसे सॉल्व करेंगे ठीक है तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा सी, तो सिग्मा सी will comes to be 11.55 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 11.55 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ये कॉम्प्रेसिव है या टेंसिल है वो लिखना है। तो क्या है ये, दिस इज कॉम्प्रेसिव। और सिग्मा टी मतलब सिग्मा एस स्टील का, उसको सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि रिलेशन है ना, सिग्मा एस इक्वल टू 4 टाइम्स सिग्मा सी, तो कितना आएगा 46.20 न्यूटन पर एम स्क्वायर टेंसाइल। Is it clear? So I hope you understand this numerical. So these are the numericals on temperature stresses. Thank you.